السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس کے کورس میں لیکچر نمبر 4 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ہم اپنے کورس کنٹینٹس کو اس سے آگے لے کر چلیں گے جتنا ہم نے پچھلے لیکچر میں کور کیا تھا۔ اس سے پہلے لیٹس ہیو اے ریویو آف آل دی ٹاپکس دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ ان دی پریویس لیکچر۔ پچھلا لیکچر یعنی لیکچر نمبر 3 ہم نے اسٹارٹ کیا تھا پروٹوکول مشینری سے۔ پروٹوکول مشینری کے اندر ہم نے پروٹوکول گراف کو اچھی طرح سے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے مختلف لیئرز کے اوپر ہم نے پروٹوکولز کو پلیس کی ہے اور ایک پروٹوکول دوسری پروٹوکول کے ساتھ کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتی ہے۔ اس میں ہم نے سروس انٹرفیس اور پیئر ٹو پیئر انٹرفیس کی بھی بات کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے انکیپسولیشن کے کانسیپٹ کو دیکھا تھا۔ اس کے اندر میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ ہر لیئر پہ جب پیکٹ موو کرتا ہے یا کوئی میسج موو کرتا ہے تو اس ڈیٹا کے اوپر اپر لیئر سے نیچے کی لیئر پہ جاتے ہوئے ایک ایکسٹرا ہیڈر اپینڈ ہوتا ہے یا یہ ڈیٹا ایک ایکسٹرا ہیڈر کے اندر انکیپسولیٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس سے نچلی لیئر کے اوپر جاتے ہوئے ایک اور ہیڈر کے اندر وہ ڈیٹا انکیپسولیٹ ہوتا ہے۔ ریسیونگ اینڈ کے اوپر جب پیکٹ ریسیو ہوتا ہے تو ہر اپر لیئر کے اوپر جاتے ہوئے ایک ہیڈر ڈیکیپسولیٹ ہوتا ہے اور اس طرح سے ہیڈر اسٹرپ ہوتے ہوتے سب سے اوپر کی لیئر کے اوپر اوریجنل ڈیٹا جو کہ اپلیکیشن نے سینڈ کیا تھا وہ ریسیو ہو جاتا ہے۔ ہم نے پروٹوکول مشینری کے بعد جو چیز اسٹڈی کی تھی دیٹ واز اسٹینڈرڈ آرکیٹیکچر۔ ان اسٹینڈرڈ آرکیٹیکچر کے اندر ہم نے ایک تو او ایس آئی کا ریفرنس ماڈل اسٹڈی کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو ایک ریفرنس ماڈل کے طور پر ہی پورے کورس میں لے کر چلیں گے، اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے۔ اٹ واز اے 7 لیئر ماڈل۔ اس کے بعد ہم نے انٹرنیٹ آرکیٹیکچر، جس کو میں نے کہا تھا کہ ہم کئی دفعہ ٹی سی پی آئی پی لیئرڈ آرکیٹیکچر بھی کہتے ہیں، اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا۔ اس کی لیئرز کا آپس میں کمپیریزن کیا تھا کہ او ایس آئی کی 7 لیئرز کے ساتھ انٹرنیٹ آرکیٹیکچر کی یہ لیئرز کس طرح سے میچ کرتے ہیں۔ اٹ از بیسیکلی اے 4 لیئر ماڈل جس میں اپلیکیشن، ٹرانسپورٹ، نیٹورک اور ڈیٹا لنک لیئر شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی اس چیز کے اوپر کہ نیٹورک ماڈلز اور لیئرنگ جو ہیں یہ آج کل کے انٹرنیٹ دور میں کس طرح سے فٹ ہوتے ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی پروٹوکولز اور میکینزمز آ گئے ہیں جو کسی ایک اسپیسیفک لیئر کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتے۔ اس کے اندر ہم نے نیٹورک مینجمنٹ کی پروٹوکولز کا ذکر کیا تھا جو کہ کئی دفعہ کراس لیئر انٹریکشن کرتی۔ ہم نے نیٹورک سیکیورٹی کی پروٹوکولز کا ذکر کیا تھا، وہ بھی کئی دفعہ بہت ساری لیئر کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کی انفارمیشن کو یوز بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے موو کرتے ہوئے نیٹورک آرکیٹیکچر کو اسٹڈی کیا تھا۔ نیٹورک آرکیٹیکچر کے اندر یہ ساری لیئرز پروٹوکول اور ان کو ہم نے گروپ کیا تھا ایک کمپلیٹ نیٹورک آرکیٹیکچر کے اندر، جس کے اندر ہم نے یہ 2 اسٹینڈرڈس ڈسکس کیے تھے۔ یہ ساری چیز کمپلیٹ کرنے کے بعد وی مووڈ آن ٹو دی سافٹ ویئر اسپیکٹ، اور ہم نے دیکھا تھا کہ پروٹوکول امپلیمنٹیشن کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں، بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ اس کے اندر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا نیٹورک سافٹ ویئر سے، بیکاز دا ریزن از کہ انٹرنیٹ کی سکسیس کی مین ریزن یہ نیٹورک سافٹ ویئر ہے۔ ہم نے بہت کمپلیکس قسم کی مشینز اور آرکیٹیکچر ڈپلوائے نہیں کیا، بلکہ زیادہ تر انٹرنیٹ کی فنکشنالٹی یا نیٹورک کی فنکشنالٹی سافٹ ویئر کے اندر رکھی۔ اس لیے جیسے جیسے نیٹورک ایوالو ہوتا گیا ویسے ویسے صرف ایک نیٹورک سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنے سے یا نیا سافٹ ویئر پیچ لگانے سے یو آر ایبل ٹو گیٹ نیو فنکشنالٹی فرام دی انٹرنیٹ۔ اسٹوڈنٹس، اس نیٹورک سافٹ ویئر کے اندر جن چیزوں کو ہم نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا وہ نیٹورکنگ اے پی آئی تھی، اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس۔ یہ اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس کیوں ریکوائرڈ تھا؟ ہم نے کہا کہ ہم یوزر سے یا ایپلیکیشن پروگرامر سے نیٹورک کی انڈر لائن تمام کمپلیکسٹی ہائڈ کرنا چاہتے، اس لیے اس کو ایک سمپل فکس سنٹیکس پرووائڈ کر دیا، ایک انٹرفیس پرووائڈ کر دیا جس کے تھرو وہ نیٹورکنگ پروٹوکول اسٹیک کی ساری سروسز انووک کر سکتا تھا۔ دین وی مووڈ آن ٹو اسپیسیفائی اے اسپیسیفک اے پی آئی جس کو ہم نے کہا تھا اٹ بیکیم پاپولر اوور ٹائم، دیٹ واز دی ساکٹ اے پی آئی۔ ساکٹ اے پی آئی اوریجنلی برکلے کی ڈسٹریبیوشن کے ساتھ یونکس آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ ایوالو ہوئی، ڈیولپ ہوئی اور آہستہ آہستہ دیٹ بیکم سو پاپولر کہ وہ باقی سارے آپریٹنگ سسٹمز کے اندر بھی اب ایزیلی اویلیبل۔ ہم نے اس کی کچھ پروٹوکولز بھی اس کی کچھ فنکشنز کال بھی دیکھی تھیں، انشاءاللہ آج ہم اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں آگے کور کریں۔ ساکٹ اے پی آئی کے بعد ہم پی پی آئی کے اوپر موو کر گئے تھے۔
PPI मीन्स प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल इंटरफेस, और हमने कहा था कि वो सारा नेटवर्किंग आर्किटेक्चर, वो प्रोटोकॉल जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट होती हैं, उसमें हम API यूज़ नहीं करते बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसीज बिल्ट। देयरफॉर हम एक PPI प्रोवाइड करते हैं ताकि हर प्रोटोकॉल दूसरी प्रोटोकॉल के साथ इंटरेक्ट कर सके। PPI को स्टडी करने के बाद देन वी मूव्ड ऑन टू दी प्रोसेस मॉडल एंड बफर मॉडल। हमने कहा था कि नेटवर्क प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट यू डिसाइड विच मॉडल यू विल यूज़। क्या आप प्रोसेस पर मैसेज मॉडल यूज़ करेंगे या प्रोसेस पर प्रोटोकॉल मॉडल यूज़ करेंगे? इन दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे। बेसिक थीम ये था कि प्रोसेस के अंदर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को अवॉइड करने की कोशिश करें। बफर मॉडल के अंदर क्या चीज़ थी कि आप क्या रिसीव होने वाले मैसेज के बफर को एक प्रोटोकॉल से दूसरी प्रोटोकॉल में कॉपी करते रहेंगे या उसका पॉइंटर पास करते रहेंगे। इसके अंदर भी बेसिक थीम ये थी कि मेमोरी कॉपी को अवॉइड करने की कोशिश करनी है एज मच एज पॉसिबल। इसके बाद हमने प्रोग्रामिंग की बात की थी। वी हैव डिस्कस्ड कि चूंकि हम इस कोर्स के अंदर प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स को भी स्टडी करेंगे और छोटी छोटी क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस के ज़रिए इन प्रोटोकॉल्स को समझने की कोशिश करेंगे। प्रोग्रामिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग को ऊपर की लेयर से नीचे की लेयर की तरफ लेकर जाएगी, बिकॉज यू विल इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस ऑब्वियसली इन द एप्लीकेशन लेयर। तो आप एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल्स को अंडरस्टैंड करेंगे और इस तरह IP की लेयर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। साथ साथ हम इस कोर्स के अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी करेंगे। वो हम नीचे की लेयर से ऊपर की लेयर की तरफ जाएंगे। तो एक तरह से ये 2 pronged अप्रोच है। ऊपर की लेयर से नीचे की लेयर की तरफ आप लोग अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे और कोर्स कंटेंट्स के अंदर हम फिजिकल लेयर को तो खैर इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ऊपर की लेयर्स की तरफ आते हुए आपके कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। इस प्रोग्रामिंग की डिस्कशन के बाद वी फाइनली एंडेड अप इन आवर लास्ट लेक्चर ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। हमने कहा था कि क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो एक एसिमेट्रिक रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है। इसमें सर्वर के रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो वेट करता है क्लाइंट की तरफ से कनेक्शन की रिक्वेस्ट का। ऑब्वियसली सर्वर मस्ट बी हैविंग अ वेल नोन नेम, अदरवाइज क्लाइंट विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू दैट सर्वर। सर्वर का एक वेल डिफाइंड आइडेंटिफाइड नोन नेम होना चाहिए, उसको वेट करना चाहिए। जब वो कनेक्शन की रिक्वेस्ट क्लाइंट की तरफ से रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स इज सेंड बैक टू द क्लाइंट। क्लाइंट साइड के ऊपर ना ही एक वेल डिफाइंड आइडेंटिटी की ज़रूरत है। इट ओनली ओपन सम कनेक्शन टू द सर्वर एंड सेंड इट्स रिक्वेस्ट। उसके बाद वो वेट करता है कि उसको रिस्पॉन्स वापस मिले एंड दैट्स इट। दिस इज सिंपल फॉर द क्लाइंट साइड। ये चीज़ ध्यान में रखें कि ऑल्दो हमने ये एसिमेट्रिक रिलेशनशिप बिल्ड किया है, लेकिन जो कम्युनिकेशन चैनल है दैट इज़ बाई डायरेक्शनल। दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होती है, क्लाइंट सर्वर दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, किसी भी टाइम पे दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं। एक तो सर्वर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जिस क्लाइंट की रिक्वेस्ट पहले आई उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट पहले प्रोसेस होगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लाइंट की रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी और एंड सो ऑन। सेकेंड अप्रोच ये है कि सर्वर कंकरेंट हो। क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट जैसे जैसे आती जा रही हैं, नए प्रोसेसेस इन्वोक करके उनकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना शुरू कर दें। थर्ड ऑप्शन वाज हाइब्रिड, कि आप कनेक्शंस तो मल्टीपल एक्सेप्ट कर लें लेकिन प्रोसेसिंग थोड़ी सीक्वेंशियल रखें। इसके बाद हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी फाइनली कि सर्वर और क्लाइंट की जो कैटेगरीज हैं ये डिसजॉइंट नहीं हैं। सर्वर किसी टाइम के ऊपर अपने क्लाइंट का क्लाइंट हो सकता है और ये क्लाइंट उस वक्त उस सर्वर के लिए खुद सर्वर की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। सो दीज आर जस्ट दी कॉन्सेप्ट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो साइड जो कि कनेक्शन को इनिशिएट करती है इन ऑर्डर टू हैव सम सर्विस इज जस्ट कॉल्ड द क्लाइंट साइड। ओके, दीज आर नॉट द होस्ट और सिस्टम दैट आर डेजिग्नेटेड एज सर्वर्स एंड क्लाइंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर अपना पिछला लेक्चर ख़त्म किया था। आज हम इसी क्लाइंट सर्वर मॉडल को लेके आगे चलेंगे और अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सॉकेट API के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और एक फाइनली एंड के ऊपर एग्जाम्पल एप्लीकेशन के थ्रू सॉकेट API की अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा डिटेल में देखेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। इसमें हम स्टार्ट करते हैं टीसीपी के कनेक्शन से। जैसे मैंने आपको कहा कि आप स्मॉल क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस के थ्रू अंडरस्टैंडिंग अपनी बेहतर बनाएंगे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल स्टैक की, तो हम सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन से जिससे इंटरेक्ट करेंगे दैट विल बी दी टीसीपी और यूडीपी, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। टीसीपी यू नो इज द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओएसआई आर्किटेक्चर के अंदर भी ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर है और इंटरनेट आर्किटेक्चर के अंदर भी ऑब्वियसली ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ही है। सो इट्स अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। टीसीपी आपको एक डायरेक्ट इंटरफेस प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन के लिए। जो भी एप्लीकेशन होगी, इफ इट वांट्स टू हैव अ रिलायबल बाइट स्ट्रीम अंडरलाइंग सर्विस दैट विल इन्वोक द सर्विसेज ऑफ द टीसीपी प्रोटोकॉल। यू शुड रिकॉल कि जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी किया था, हर प्रोटोकॉल एक सर्विस इंटरफेस प्रोवाइड करती है और एक पीयर टू पीयर इंटरफेस प्रोवाइड करती है। पीयर टू पीयर इंटरफेस तो एक टीसीपी प्रोटोकॉल का अपनी रिमोट एंड के ऊपर दूसरे टीसीपी प्रोटोकॉल के लिए होगा, लेकिन जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं दैट इज द सर्विस इंटरफेस। ये वो इंटरफेस है जिसके थ्रू हम टीसीपी की सर्विसेज को इन्वोक करेंगे। ऑल्दो एज बीइंग एप्लीकेशन प्रोग्रामर हमारे पास उसका एग्जैक्ट सिंटेक्स नहीं, बल्कि उसको हम एपीआई के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, बिकॉज वी आर प्रोवाइडेड विद एन एपीआई, जो यूजुअली हम सॉकेट एपीआई की बात करेंगे। नाउ डिस्कसिंग इन डिटेल लिटिल बिट ऑफ टीसीपी, हम सबसे पहले देखते हैं कि उसके एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विसेज क्या हैं। सबसे पहली चीज़, इट्स अ रिलायबल बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। बाइट स्ट्रीम जस्ट मीन्स कि फिक्स्ड बाउंड्रीज में डेटा को ट्रांसफ़र नहीं करती, बल्कि एप्लीकेशन लेयर की तरफ से बाइट्स ट्रांसमिट होती चली जा रही हैं और वो उस तरह से उनको स्मॉल सेगमेंट्स की फॉर्म में जस्ट ट्रांसमिट कर रही है। देयर इज़ नो बाउंड्री दैट इज मेंटेन्ड बाय द टीसीपी प्रोटोकॉल इटसेल्फ। नेक्स्ट थिंग इज दैट इट्स अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये है कि डेटा की ट्रांसमिशन से पहले टीसीपी अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है और इसी तरह से डेटा की ट्रांसमिशन व्हेन इट एंड्स देयर इज अ स्पेसिफिक एक्सप्लिसिट टीयर डाउन मैकेनिज्म जिसके थ्रू वो कनेक्शन खत्म हो जाता है। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द टीसीपी सर्विसेज दैट इट प्रोवाइड्स इन ऑर्डर डिलीवरी ऑफ डेटा। When message 1 is transmitted and then message 2 is transmitted, then at the receiver end, always message 1 will be received first by the application, not on the network. Application को हमेशा message 1 पहले मिलेगा, message 2 बाद में मिलेगा. Even if it is out of order on the network, it's the responsibility of the TCP protocol कि वो डेटा को in order form में application तक पहुँचाए. नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इट्स अ रिलायबल बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। रिलायबल मीन्स कि कोई पैकेट या कोई मैसेज सेगमेंट अगर मिस होता है तो ये टीसीपी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि उसको रीट्रांसमिट करेगी और वो डेटा एप्लीकेशन तक पहुंचेगा। सेकेंड थिंग इज दैट नो पैकेट और मैसेज सेगमेंट विल बी रिसीव्ड ट्वाइस बाय द एप्लीकेशन। अगर कोई डुप्लीकेट सेगमेंट्स रिसीव होते हैं तो टीसीपी उनको डिस्कार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेती है। Another aspect of its service is that it provides flow control. इसका मतलब ये है कि सेंडर जो है वो unnecessarily बहुत ज़्यादा डेटा पंप पे नहीं कर सकता जो कि रिसीवर रिसीव ही ना कर सके। If the receiver is slow, sender will not send too much data and just waste the bandwidth because इतना ज़्यादा डेटा या इस हाई स्पीड के ऊपर डेटा रिसीवर प्रोसेस ही नहीं कर सकता। ये किस तरह से इंडिकेट किया जाता है फ्लो कंट्रोल सेंडर को, ये हम इंशाल्लाह जब टीसीपी को डिटेल में देखेंगे उस वक्त स्टडी करेंगे। बट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अ फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म और सेंडर सिर्फ उतना ही डेटा रिसीवर को भेजता है जितना रिसीवर प्रोसेस कर सकता है। इस फ्लो कंट्रोल के ज़रिए हम ग्लोबल कंजेशन कंट्रोल के प्रॉब्लम भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि सेंडर सिर्फ उतना डेटा सेंड करता है जितना रिसीवर को रिक्वायर्ड है, तो अननेसेसरी नेटवर्क के अंदर कंजेशन भी प्रोड्यूस नहीं होती। एक और एस्पेक्ट जो टीसीपी की सर्विस है दैट इज फुल डुप्लेक्स। इट मींस कि दोनों टीसीपी के कनेक्शन के एंड्स एक ही टाइम पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि पहले एक डेटा सेंड करे, वो रिसीव हो और फिर दूसरी साइड डेटा को सेंड करे। बोथ कैन सेंड एट एनी टाइम एंड द डेटा विल बी रिसीव। लास्ट एस्पेक्ट जो टीसीपी की सर्विस का है, इट इज दैट द टीसीपी कनेक्शन इज आइडेंटिफाइड बाय 16 बिट पोर्ट नंबर्स।
इन्हीं 16 बिट पोर्ट नंबर्स के थ्रू आप इन कनेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं और एक सिंगल होस्ट के ऊपर मल्टीपल कनेक्शंस को अलाउ करते हैं, क्योंकि ये पोर्ट नंबर्स के थ्रू आइडेंटिफाई हो सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द टीसीपी कनेक्शन सेटअप मैकेनिज्म अ लिटिल बिट मोर इन डिटेल. मैं आपको एक डायग्राम की फॉर्म में इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ, उससे आपको ये पता चलेगा कि टीसीपी का कनेक्शन सेटअप मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से काम करता है. इफ यू सी ऑन दिस स्लाइड, टीसीपी कनेक्शन सेटअप इज वाया अ 3-वे हैंडशेक. इसमें J and K आर सीक्वेंस नंबर फॉर द मैसेजेस. व्हेन द क्लाइंट्स वांट टू इनिशिएट अ कनेक्शन, वो एक सिंक का सेगमेंट भेजता है विद द सीक्वेंस नंबर J. J इज एनी आर्बिट्ररी सीक्वेंस नंबर. Server replied with the segment sync ACK, sync with the sequence number K and acknowledgement of the previous sync that has been received. Obviously, the sequence number is incremented. Now it is not J, it is J plus 1. और finally, client उसको acknowledge करता है. अब किस चीज़ की acknowledgement है? ये उस sync की acknowledgement है जो server ने भेजी थी. That was with sequence number K, तो उसने acknowledgement K plus 1 के साथ भेजी है. इसी तरह से आप देखते हैं कि RTT plays a very important role in this TCP connection. हमने इससे पहले बैंडविड्थ की बात की थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि latency is also important factor for the performance of communication networks. इसमें RTT का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है in order for a connection to be set up. इसी तरह से TCP का कनेक्शन टीयर डाउन जो है, it's a 4-step process. Any side, either client or server may initiate the TCP connection tear down. जो साइड भी एक्टिव क्लोज करेगी यानी इनिशिएट करेगी, इट विल सेंड अ फिन सेगमेंट विद सीक्वेंस नंबर J, और सर्वर साइड से वो उसको रिप्लाई जाएगा एक्नॉलेजमेंट विद द सीक्वेंस नंबर ऑब्वियसली J plus 1. Keep in mind that now the other side is not forced also to close the connection. It may continue sending data, and whenever its own application closes the connection, it will send its own fin segment. That fin segment will be replied with the acknowledgement segment, and that's it. This is the 4-way connection tear down process. Now you understand better that latency is very important because every segment that is sent. Now students, TCP को डिटेल में स्टडी करने के बाद we move on to UDP. बिकॉज इट्स ऑल्सो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, और आप अपनी एप्लीकेशंस के थ्रू जिस तरह TCP को की सर्विसेज इन्वोक करेंगे और TCP के ऊपर अपनी स्मॉल एप्लीकेशंस बिल्ड करेंगे, उसी तरह UDP को भी यूज़ करेंगे. ऑल्दो इट्स नॉट ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल एज कम्पेयर टू TCP. UDP इज़ यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल. OSI मॉडल के अंदर ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर है और इंटरनेट आर्किटेक्चर के अंदर भी ऑब्वियसली ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर है. इसी तरह हम UDP को भी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल कहते हैं, जिस तरह TCP इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल. इट्स अ वेरी थिन लेयर ओवर IP बिटवीन दी एप्लीकेशन लेयर. मैं क्यों इसको थिन लेयर कह रहा हूँ कि ये बहुत ही कम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है किसी भी एप्लीकेशन के लिए जो कि इसको यूज़ कर रहे हैं. हम अगर UDP के एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विस देखें कि ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, द फर्स्ट थिंग इज दैट द यूनिट ऑफ ट्रांसफर इज अ डेटाग्राम. TCP के अंदर देयर वाज नो बाउंड्री प्रोवाइडेड बाय द TCP प्रोटोकॉल इटसेल्फ. UDP प्रोवाइड्स द बाउंड्री. जो डेटा भी एप्लीकेशन से UDP प्रोटोकॉल को मिलता है वो उसको एक डेटाग्राम की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करती है. इट मीन्स दैट बाउंड्री इज इंपॉर्टेंट. वेन एवर दैट डेटा इज रिसीव्ड बाय द अदर एंड receiver, the UDP protocol retains that boundary and passes the same data, उसी पीस को वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर पास ऑन करती है. The second thing is the UDP protocol is unreliable. TCP reliable थी, UDP is unreliable. It means कि अगर कोई डेटाग्राम नेटवर्क के ऊपर लॉस्ट हो जाती है तो UDP will not try itself to recover from the loss. That message is lost, that is lost. There is no ordering guarantees. इट मीन्स कि अगर पैकेट नंबर 1 2 3 4 आपको सेंड किया गया और पैकेट नंबर 1 2 4 3 रिसीव हुआ तो वो इसी ऑर्डर में UDP एप्लीकेशन लेयर को डेटा पास ऑन कर देगी. इट विल नॉट ट्राई टू मेक द सीक्वेंस ऑफ द पैकेट्स. येट अनदर थिंग इज, जिस तरह हमने अभी TCP के अंदर देखा कि उसके अंदर फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म है, UDP में फ्लो कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म. अब आप देख रहे हैं कि UDP ने बहुत सारी TCP की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की. Now what it has provided?
इट हैज़ प्रोवाइडेड दिस 16-bit पोर्ट नंबर जिसके थ्रू आप एक होस्ट के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं जो कि यूडीपी की प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं। और ये जो 16-bit पोर्ट नंबर है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी TCP 16-bit पोर्ट नंबर। ये दोनों के 16-bit पोर्ट नंबर सेपरेट हैं। A same number can be used to have a UDP protocol and the same port number can be used by the application for the TCP. ये दोनों distinct हैं, but they are very similar because they identify the application. यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमने इससे पहले Socket API स्टडी की थी। Socket provides an interface जिसके थ्रू एप्लीकेशन एक हैंडलर के थ्रू जो कि आपको सॉकेट के सिस्टम कॉल में रिटर्न हुआ था उस हैंडलर के थ्रू सॉकेट से कम्युनिकेट करती है, लेकिन उस सॉकेट का दूसरा एंड जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पोर्ट नंबर। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल से जब कोई डेटा रिसीव होता है तो आईपी लेयर के बाद यूडीपी या टीसीपी की प्रोसेसिंग में वो आगे किस एप्लीकेशन को पास करेगा, दैट इज आइडेंटिफाइड बाय द पोर्ट नंबर एंड दैट पोर्ट नंबर इज एसोसिएटेड विद द अदर एंड ऑफ द सॉकेट। उसका एक एंड एप्लीकेशन के पास है और एप्लीकेशन उसको हैंडलर के थ्रू एक्सेस करती है। अंडरलाइंग जो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल स्टैक है या ट्रांसपोर्ट लेयर वो उसको पोर्ट नंबर के थ्रू एक्सेस करती है। नेक्स्ट थिंग जो कि मेरे ख्याल में प्रोग्रामिंग या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बेहतर होगी वो है कि हम एड्रेसेस और डेटा को थोड़ा सा बेहतर अंडरस्टैंड करें। आपने देखा होगा कि आप जब इंटरनेट के ऊपर किसी जगह पर ब्राउजिंग किसी वेबसाइट के ऊपर ब्राउजिंग करते हैं तो आप आईपी एड्रेसेस नहीं यूज़ करते, आप उसका नाम यूज़ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यू कैन रिटेन दैट नेम। फॉर एग्जांपल mail.yahoo.com, www.vu.edu.pk, ये वो नाम हैं जो कि आप आसानी से रिटेन कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं डोमेन नेम्स, या अगर आप इसको कंप्लीट टर्मिनोलॉजी में कहें तो इसको हम कहते हैं FQDN, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स। ये ज़्यादा आसान है रिटेन करने के लिए। अब अगर आपको ये आसानी प्रोवाइड की गई है तो इसका मतलब है कि अंडरलाइन एक सर्विस इन्वोक की गई है जो कि इन नामों को आईपी एड्रेसेस के ऊपर मैप करती है। वो DNS सर्विस है जो कि हम इंशाल्लाह इस कोर्स के बिल्कुल एंड में चैप्टर नंबर 9 जब हम स्टडी करेंगे उसमें DNS की सर्विस डिटेल में स्टडी करेंगे। अनदर थिंग इज़ द आईपी एड्रेस इटसेल्फ जो कि आप यूज़ करेंगे। आईपी एड्रेस IPv4 वर्जन 4 के अंदर डॉटेड डेसिमल नोटेशन के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 128.93.0.4 4 बाइट्स हैं और डॉटेड डेसिमल नोटेशन के अंदर हम इसको लिखते हैं। ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चर के अंदर, एक बाइनरी स्ट्रक्चर के अंदर एक न्यूमेरिक की फॉर्म में यूज़ होता है, बट वी यूजुअली राइट इट एंड यूज इट फॉर आवर ओन पर्पज इन अ डॉटेड डेसिमल स्ट्रिंग। ये जो आईपी एड्रेसेस हैं दीज आर यूजुअली एसोसिएटेड विद सम ज्योग्राफी। इसका मतलब है कि एक आईपी एड्रेस अगर एक लोकेशन के अंदर एलोकेटेड है तो उसके बिल्कुल करीब का जो आईपी एड्रेस होगा एक सबनेट के अंदर या एक नेटवर्क के अंदर भी उसी लोकेशन के अंदर मौजूद होगा। यानी एक नेटवर्क पोर्शन होगा और बाकी होस्ट पोर्शन के अंदर सारे नोड्स हैं वो उसी नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट करते होंगे। बट दिस इज़ नॉट रियली रिस्ट्रिक्टिव। It is possible that one node of a same network may reside physically or geographically somewhere else in the internet. But usually हम इसको फॉलो करते हैं कि सारी नोड्स एक नेटवर्क की एक जगह पर होती हैं। एक और एस्पेक्ट जो कि हम अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट से पहले स्टडी कर लें वो है एंडियननेस। व्हाट इज़ एंडियननेस? आपकी मशीन्स के जो आर्किटेक्चर हैं, ये कंप्यूटर्स के जो आर्किटेक्चर हैं वो डिफरेंट एंडियननेस को फॉलो करते हैं। कुछ मशीन्स होती हैं लिटिल एंडियन और कुछ मशीन्स होती हैं जो कि बिग एंडियन नोटेशन को फॉलो करती हैं। फॉर एग्जांपल इंटेल की जो मशीन्स हैं, डेक के जो पीसीज हैं, दे फॉलो लिटिल एंडियन। व्हाट इज लिटिल एंडियन? दैट द लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ऑफ एनी वर्ड विल बी रिटन इन द लोएस्ट मेमोरी लोकेशन। लाइकवाइज जो बिग एंडियन मशीन है उसमें ये स्कीम फॉलो की जाती है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ऑफ द वर्ड है लोएस्ट मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर किया जाता है। मसलन सन या HP की जो मशीन्स हैं दे फॉलो बिग एंडियन स्कीम। अब आपने देख लिया कि आपके पास लिटिल एंडियन मशीन्स हैं और बिग एंडियन मशीन्स हैं। इसका मतलब है कि कोई भी मल्टीपल बाइट की फील्ड जब रिसीव होती है तो वो कैसे स्टोर की जाएगी? एक मशीन का आर्किटेक्चर उसको डिफरेंट स्टोर करेगा और दूसरी मशीन का आर्किटेक्चर उसको डिफरेंट स्टोर करेगा। ऑब्वियसली वो इंटरप्रेट भी डिफरेंट होगी।
اب اس کا کیا سولوشن نکالا جا سکتا؟ اس کا سولوشن ہے کہ وی ہیو ڈیفائنڈ اے نیٹورک بائٹ آرڈر. نیٹورک بائٹ آرڈر از بگ انڈین. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹورک کے اوپر آپ جب بھی کوئی ملٹیپل بائٹ کی فیلڈ سینڈ کریں گے دیٹ شوڈ بی ان دی نیٹورک بائٹ آرڈر اور ان دی بگ انڈین آرڈر. Now it is important that whenever you send any multiple byte field onto the network, you always convert it into the big endian scheme and then send it, because in this way these fields will be interpreted in similar manner. Whatever will be the architecture of the machine, it will interpret it as the big endian coming from the network in a network byte order and will store it as per the architecture of the local machine. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ ڈیٹا کے لیے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل آئی پی ایڈریس, یہ 4 بائٹ کا ایڈریس ہے IPv4 کے اندر. اگر آپ اس کو نیٹورک بائٹ آرڈر میں کنورٹ کیے بغیر نیٹورک پہ ٹرانسمٹ کر دیں گے تو ریسیونگ اینڈ کے اوپر اٹ مے بی اسٹورڈ ان اینی مینر, may be correctly, may be incorrectly, and you will never be sure. کچھ ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جس کے لیے آپ پریفر کرتے ہیں کہ نیٹورک بائٹ آرڈر میں اس کو ٹرانسمٹ کریں. فار ایگزامپل ایپلیکیشن کا بائنری ڈیٹا. اگر ایپلیکیشن کا بائنری ڈیٹا نیٹورک بائٹ آرڈر میں سینڈ کیا جائے اٹ از پریفریبل. However, there is some type of data جس کے لیے NDNS کی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ASCII text, because all the characters are in a single byte, therefore in whatever sequence you will send, they will always be received in a single byte characters, اور آپ ان کو کریکٹلی سینڈ بھی کرتے ہیں اور ریسیو بھی کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمارے پاس ایپلیکیشن ڈیولپ کرتے وقت کچھ اسمال لائبریری روٹینز آلریڈی موجود ہیں. ہم ان کو یوز کرتے ہوئے NDNS کے پرابلم کو سالو کرتے ہیں. وی آر ناٹ ریئلی ریکوائرڈ آور سیلوز کہ ہم ہر اپنی ملٹیپل بائٹ فیلڈ کی NDNS کو خود سے کریکٹ کریں اور چیک کریں اور ان کے پروگرامنگ کریں. دی لائبریری روٹینز آلریڈی اویلیبل آر ایز شون ان دی سلائڈ. ان آرڈر ٹو ڈو فرام دی نیٹورک بائٹ آرڈر ٹو دی ہوسٹ بائٹ آرڈر, it may be N2HL or N2HS. It just specifies if the field is long, that is 32 bit, یعنی 4 byte long field ہے تو آپ یوز کریں گے N2HL اور اس کو یہ ویلیو پاس کریں گے. It will return you the same field in the network byte order. اگر وہ 16 bit کی یعنی 2 byte کی فیلڈ ہے, آپ یہ اس کو N2HS کے اندر پاس کریں گے and it will return to you the same field in the network byte order. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس 32 بٹ کی فیلڈ ہے اور وہ نیٹورک بائٹ آرڈر میں اینڈ یو وانٹ ٹو کنورٹ اٹ انٹو دی ہوسٹ بائٹ آرڈر, یو ول یوز H2NL, اور اگر وہ 2 بائٹ کی فیلڈ ہے تو آپ اس کے لیے یوز کریں گے H2NS. یہ لائبریری روٹینز آپ کے ہوسٹ سسٹم کے اوپر آلریڈی اویلیبل ہیں. اگر آپ کا ہوسٹ بگ انڈین اسکیم کو فالو کرتا ہوگا تو یہ جو لائبریری روٹینز ہیں یہ نل روٹینز ہوں گی, کیونکہ نیٹورک بائٹ آرڈر از دی سیم ایز دی ہوسٹ بائٹ آرڈر, سو نو کنورژن ول بی ڈن. اور اگر آپ کی مشین جو ہے وہ لٹل انڈین کو فالو کرتی ہوگی تو یہ جو لائبریری روٹینس ہیں یہ پھر اپروپریٹلی پروگرام کی گئی ہوں گی. اسٹوڈنٹس, اس کے بعد NDNS کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از دی ساکٹ ایڈریس اسٹرکچر. کیپ ان مائنڈ کہ ہم مختلف فیلڈس کو ایک اسپیسیفک اسٹرکچر کے اندر فل کر کے TCP کے کنیکشن پر یا UDP کے لیے سینڈ کرتے ہیں. بہت ساری فیلڈ ریکوائرڈ ہوتی ہیں ان آرڈر ٹو آئیڈینٹیفائی کمپلیٹلی اے TCP کنیکشن, جس میں ہم نے بات کی تھی کہ IP ایڈریس ریکوائرڈ ہے, پورٹ نمبر ریکوائرڈ ہے ان آرڈر ٹو آئیڈینٹیفائی دی ایپلیکیشن, دی رائٹ ایپلیکیشن. ان ساری چیزوں کو ہم ایک اسٹرکچر کے اندر ایمبیڈ کر کے ایک سنگل اسٹرکچر کی فارم میں نیٹورک کے اوپر ٹرانسمٹ کرتے ہیں اور اپنے پیکٹ کو کمپوز کرتے ہیں. If you look in these slides, we have 2 types of structures shown in this slide. First is the IN_address. اس کے اندر ہم انٹرنیٹ ایڈریس کو اسٹور کرتے ہیں. That is the 32 bit IP address, obviously for IPv4. جو دوسرا اسٹرکچر آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے that is for the TCP اور UDP addresses. And what are they? Obviously, they contain the IP address shown in the field IN_address, then again the port number and also the family. ہم نے کہا تھا کہ family may be AF, INET, Unix اور other.
یہ جو فرسٹ ایڈریس ہے IN_ ایڈریس کا، اس کو ہم نے انکارپوریٹ کر دیا اس سیکنڈ ایڈریس کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں SOC ایڈریس _ IN، دیٹ از دی ساکٹ ایڈریس فار دی انٹرنیٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسی طرح ہمارے پاس بہت ساری لائبریری روٹینز ہیں جن کو ہم یوز کر ایڈریسز کی کنورژنس کر سکتے ہیں. اب یہ ایڈریسز کی کنورژن کیوں ضروری ہے؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یو مے بی مور فیملیئر ٹو یوز نیمز رادر دین IP ایڈریسز. فار ایگزامپل www.google.com آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، بٹ دی نیٹ ورک ریکوائرز دی IP ایڈریس آبویسلی. تو آپ کو ایک سمپل لائبریری روٹینز پرووائڈ کر دی گئی ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنے لیے نیمز رکھتے ہیں اور انڈر لائن نیٹ ورک جو ہے وہ IP ایڈریسز کے ساتھ پلے کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیں تو جو پہلی سسٹم کال ہے دیٹ از گیٹ ہوسٹ بائی نیم، اس کو آپ ایک IP ایڈریس پرووائڈ کرتے ہیں اور یہ DNS کو یوز کرتے ہوئے آپ کو ایک ہوسٹ نیم ریٹرن کرتا ہے. اسی طرح اس سے اگلی جو سسٹم کال ہے دیٹ از گیٹ ہوسٹ بائی ایڈریس، دس از جسٹ دی ریورس. آپ اس کو ہوسٹ نیم پرووائڈ کرتے ہیں اور یہ آپ کو IP ایڈریس پرووائڈ کرتا ہے. کیپ ان مائنڈ دیٹ اٹ از ناٹ ریئلی کنسیڈرڈ سیکیور، سو یو شوڈ ویریفائی the IP address, the host name that is returned by this system call through the DNS again. اسی طرح یہ جو لاسٹ سلائڈ اس سسٹم کال آپ کو اس سلائڈ پر نظر آ رہی ہے دیٹ از گیٹ ہوسٹ نیم، یہ آپ کو لوکل سسٹم کا IP ایڈریس بلکہ لوکل سسٹم کا جو نیم ہے یہ ریٹرن کرتی ہے. اس سلائڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 3 اور سسٹم کالز ہیں جن کو ہم لائبریری روٹینز ہیں جن کو یوز کر سکتے ہیں for the similar purposes. First is INET address. اس میں آپ ڈاٹڈ ڈیسیمل نوٹیشن پاس آن کرتے ہیں اینڈ اٹ ریٹرنز یو دی بائنری اسٹرکچر آف دی IP ایڈریس. اس سے اگلی جو سسٹم کال ہے دیٹ از INET ASCII to numeric. It does the same thing but it returns 1 on success and 0 on failure. You give the dotted decimal notation and it returns the structure for the IP address. یہ جو لاسٹ سسٹم کال ہے دیٹ از INET N2A یعنی نیٹ ورک ٹو ASCII. اس کو آپ نومیرک فارم میں یا اسٹرکچرڈ فارم میں IP ایڈریس پاس ان کرتے ہیں اور یہ آپ کو ڈاٹڈ ڈیسیمل نوٹیشن کے اندر ایک کریکٹر اسٹرنگ پرووائڈ کرتی ہے IP ایڈریس کی. اسٹوڈنٹس، ناؤ وی ول موو آن ٹو دی ساکٹ API اور ہم اس کی کچھ ڈیٹیل فنکشنالٹی کو دیکھیں گے. First of all, we need to understand the Unix concept. Very basic. We will not go into the details of the operating system, but very basic concept جو کہ ہماری اس سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہے. Then we will see the creation and setup of these connections. یہ ہم کس طرح سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. TCP کے کنیکشن ہیں، UDP کے کنیکشن ہیں، how they will be established, and then we can move on with the actual usage of this socket API function calls. Sending and receiving data will then follow after the connection setup. اس کے اوپر ہم اپلیکیشن کا ڈیٹا ان ساکٹس کو یوز کرتے ہوئے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ کے اوپر ٹرانسپورٹ کریں گے. When all the data is sent, obviously we will tear down the connection in case of TCP, and finally we will be having very few system calls for the advanced socket. If you want to invoke new processes, if you want to wait and poll for the incoming data, we will see very few commands in this regard also. Basics Unix concept کے اندر ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ Unix ایک ٹیبل یوز کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پر پروسیس ٹیبل آف IO چینل. وہ تمام IO ڈیوائسز یا دوسری چیزیں جن کے ساتھ اس پروسیس نے انٹریکٹ کرنا ہے وہ اس ٹیبل کے اندر لسٹڈ ہے. ان ٹیبلز کے اندر کچھ فائلز بھی ہو سکتی ہیں، کچھ ڈیوائسز بھی ہو سکتی ہیں، کچھ نیٹ ورک کے کنیکشنز بھی ہو سکتے ہیں اور پائپس بھی ہو سکتی ہیں. بیکاز دیٹ پروسیس ان دی یونکس آپریٹنگ سسٹم کمیونیکیٹس ود دیز ڈیوائسز، فائلز بھی ڈیوائسز ہیں اس کے لیے، تو ان کے اگینسٹ وہ ایک ڈسکرپٹر مینٹین کر لیتے ہیں، ایک ٹیبل مینٹین کر لیتے ہیں، اینڈ اٹ مینٹینز دی چینلز ود دیز ڈیوائسز، جن کو ہم کہتے ہیں IO چینلز، ان پٹ آؤٹ پٹ چینل، جو کہ یونکس سسٹم کے اندر ہم نے یوز کیے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے اس ٹیبل کا کہ ایک یونیفائڈ قسم کا IO انٹرفیس ہمیں پرووائڈ ہو گیا. Even this process want to communicate with the file, it's the same location. آپ وہاں سے ڈسکرپٹر پک کرتے ہیں اور اس فائل کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. Any hardware device, any network connection, everything is in this table. اور اس ٹیبل کو انڈیکس کرتے ہیں ہم ایک فائل ڈسکرپٹر سے.
everything will be handled by this file descriptor. इसी फाइल डिस्क्रिप्टर से आप किसी फाइल को एक्सेस करते हैं, इसी फाइल डिस्क्रिप्टर से आप नेटवर्क के ऊपर कनेक्शन को एक्सेस करते हैं, और इसी एक फाइल डिस्क्रिप्टर से यूनिक्स के अंदर आप किसी डिवाइस को एक्सेस करते हैं. यूनिक्स के अंदर एक और चीज़ है, दैट इज़ द बेसिक एरर मॉडल. It means कि whenever a system call is failed because of any error, there is a specified standardized error model जिससे आपको पता चल जाता है कि ये system call successful हुई या ये system call fail हो गई. And the standardized error is that every system call will return 0 as an integer value if it is successful and it returns -1 on failure. अगर वो स्पेसिफिक सिस्टम कॉल कोई पॉइंटर रिटर्न करती है, देन इट विल रिटर्न नल पॉइंटर ऑन फेलियर फॉर द रूटीन्स दैट आर नॉट सक्सेसफुल. एक और चीज़ जो यूनिक्स के एरर मॉडल के अंदर पाई जाती है, दैट इज़ द वेरिएबल कॉल्ड एरर नंबर और एरर नो. इस वेरिएबल के अंदर जो मोस्ट रीसेंट एरर किसी भी सिस्टम कॉल से अकर हुआ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक कोड अवेलेबल होता है. आप इस एरर नंबर वेरिएबल को रीड कर डिटरमिन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या एरर अगर हुआ, वो उस एरर नंबर कोड के अगेंस्ट आपको अवेलेबल है. डियर स्टूडेंट्स, इन सारी चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स हैव एन इलस्ट्रेशन, जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि जब दो मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो वो कौन कौन सी सिस्टम कॉल्स को इन्वोक करती हैं और वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि इस कनेक्शन के लिए ज़रूरी हैं. नाउ लेट्स सी अ वेरी सिंपल क्लाइंट सर्वर कनेक्शन. मैंने इस एग्जांपल के अंदर दो कंप्यूटर्स को शो किया है जिसमें एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, एंड द सर्वर इज़ फॉर एग्जांपल mail.yahoo.com. सबसे पहले हम एक सॉकेट को क्रिएट करते हैं ऑब्वियसली सर्वर के ऊपर. इसका मतलब है कि क्या प्रोसेस होगा, दैट द सर्वर विल अनाउंस दैट आई एम mail.yahoo.com एंड आई एम लिसनिंग ऑन पोर्ट B. Second thing that is required by the server machine is that it is ready to accept connections. Another thing is that on the client side we also need to create a connection, a socket. इस socket के ऊपर client will not require any known ID or known identifier address. It will just say I would like to talk to the server machine, or server machine is identified by the mail.yahoo.com with port B. When this will happen on the client machine, the server will accept the newly coming connection and it will say to its socket that I will talk to my machine and coming from any port A. Now you can see in this slide that a new socket is created to establish the connection between the client and the server. The existing listening socket is still there. It will keep listening for the new connections that will come for this service. इस तरह से उनके दरमियान एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, एंड नाउ दे कैन ट्रांसफर डेटा बिटवीन these two machines over this established connection. Very important thing is that the resulting TCP connection is identified by the 4 identifiers. We call it as 4 tuple. First is the address of this machine. I have mentioned it as my machine. Next is the port number. Here the port number is A. Another is the address of the other machine, which is mail.yahoo.com, and again the port number, which is port number B. So my machine A, mail.yahoo.com, and B. These are the 4 fields that are required to identify this connection. Dear students, ये तो एक सिंपल स्टेप्स थे जो कि एक मशीन ने दूसरी मशीन से कनेक्शन के वक्त करने हैं. बट हाउ यू विल एसोसिएट दी सिस्टम कॉल्स, और ये जो हमने सॉकेट एपीआई पढ़ी थी, सॉकेट एपीआई की सिस्टम कॉल्स जो लाइब्रेरी रूटीन्स की फॉर्म में मौजूद हैं, उनको आप इन स्टेप्स के साथ कैसे एसोसिएट करते हैं. वट यू विल से कि सर्वर मशीन कह रही है create a socket, which system call will be actually run or invoked in the server machine. The client is saying talk to the server machine. How you will associate the socket API system call to these actions. Now let's see it in the next illustration. I have shown the same 2 machines. इसमें when the socket is created on the server side, or it says that I am mail.yahoo.com at port B, it means that it is using the system call first socket, and the second system call is bind.
This is the bind system call that binds this address mail.yahoo.com and port number B to this newly created socket. اگلا اسٹیپ کیا تھا؟ ہم نے کہا کہ سرور نے اناؤنس کیا I accept connections. اگلا اسٹیپ تھا کہ client has created a socket and said talk to mail.yahoo.com with port B. اس کا مطلب ہے client has used the system called socket and the next is connect with the parameters mail.yahoo.com and port B. جب یہ کنیکشن اس نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تو وٹ ہیپنڈ ایٹ دی سرور اینڈ وچ واز لسننگ فار دی کلائنٹ ریکویسٹ it has said I will talk to my machine and port A. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو سسٹم کال انووک کی دیٹ واز accept. When the accept call returns, a new connection has been established and now you can use send and receive system calls to transfer data between these two machines. Finally, when all the data has been transferred, you will use close or shut down system call in order to terminate the connection. تو اسٹوڈینٹس اس سمپل illustration کے ساتھ میں نے آپ کو دکھایا کہ کنیکشن سیٹ اپ کس طرح سے دو مشینز کے درمیان ہوگا. ہم نے ایک مشین کو کلائنٹ اور دوسری مشین سرور کے طور پر اس illustration میں شو کیا تھا. Now you need to understand a little bit more in detail the socket system calls. یہ جو میں نے ان سارے اسٹیپس کے ساتھ ساکٹ اے پی آئی کی ایک ایک سسٹم کال ایسوسیٹ کی جس میں ساکٹ ہے, بائنڈ ہے, لسن ہے, ایکسیپٹ ہے, پھر سینڈ اور ریسیو کی سسٹم کالز ہیں, فائنلی کلوز اور شٹ ڈاؤن کے سسٹم کالز. We need to understand these system calls a little bit more in detail in order to build our own client server applications that we will use all along this advanced computer networks course. اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو سب سے پہلے ساکٹ کی سسٹم کال نظر آ رہی ہے. ساکٹ کی سسٹم کال ریٹرن دی ہینڈلر دیٹ از ویری امپورٹنٹ, دین بائنڈ which will bind the socket address to the newly created socket, and listen which will make the socket or move the socket into the passive or listening state. اگر آپ ساکٹ کی سسٹم کال کو ڈیٹیل سے دیکھیں, the first parameter we will give is the family which may be AFINet for example, then the type جس ہم نے کہا TCP کے کیس میں we will use SOC stream, and then the protocol which may be unspecified because the type and family can in combination select the correct protocol. The very important thing is again the return value which is an integer value. This will be the handler for this newly created socket. Agli system call hai bind ki. This bind system call will says that you will pass on the handler in the form of socket file descriptor and the socket address structure jiske saath aap is newly created socket ko bind karenge. اور ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ یہ ساکٹ ایڈریس اسٹرکچر کنٹینز دی آئی پی ایڈریس, دی پورٹ نمبر اینڈ دی فیملی. اگر آپ آئی پی ایڈریس میں ان ایڈریس اینی کا میکرو یوز کریں یا یہ ویلیو پاس آن کریں, اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ اسپیسیفائنگ اینی اسپیسیفک آئی پی ایڈریس بٹ وٹ ایور آئی پی ایڈریس از یوز بائی دس مشین مے بی باؤنڈ ٹو دس ساکٹ. اسٹوڈنٹس ابھی ہم نے دیکھا کہ ساکٹ ایڈریس اسٹرکچر کے اندر ہم آئی پی ایڈریس کے ساتھ پورٹ نمبرز یوز کرتے ہیں. یہ کون سے پورٹ نمبرز ہیں؟ آبویسلی یہ 16 بٹ پورٹ نمبرز کی فیلڈ ہے جو کہ ٹی سی پی اور یو ڈی پی میں موجود ہے, لیکن یہ پورٹ نمبرز ایک رینج کے اندر ایانا کی طرف سے اسپیسیفائی کیا گیا. ایانا مینس انٹرنیٹ اسائنڈ نمبر اتھارٹی. 1 سے لے کر 1023 تک جتنے بھی پورٹ نمبرز ہیں دے آر ریزروڈ, دے آر اسائنڈ بائی ایانا, اور آپ ان پورٹ نمبرز کو ایون یوز بھی نہیں کر سکتے. یو نیڈ ٹو ہیو administrator right in order to use any port number or bind any application of yours to these port numbers because these are reserved and usually the operating system and well-known services use these port numbers. 1024 سے لے کے آگے آخر تک 65535 تک, although these are again subdivided but these are usually available for you to use for your own applications. Now we will move on to some other system calls of the socket API. اس میں سے سب سے پہلی جو چیز امپورٹنٹ ہے that is listen. The listen system call also take the socket file descriptor as the first parameter and then backlog as the second parameter. Socket file descriptor is again the handler of that socket and the backlog value specifies کہ آپ کتنے unaccepted connection waiting میں رکھ سکتے ہیں. یعنی ابھی تک وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئے لیکن انیشیلی وہ ریسیو ہو چکے ہیں فار سروس.
Another system call is the connect, जो कि हमने कहा connect client side के ऊपर आप use करते हैं. First parameter is the socket file descriptor, I mean the handler of the socket, then the socket address structure. Whenever you are mentioning to connect to some server, obviously you are giving the address of that server. उस address के अंदर keep in mind IP address और port number बहुत important है. तो ये तीन चीज़ें थी जो कि हमने पास ऑन की. सॉकेट का फाइल डिस्क्रिप्टर, सर्वर का एड्रेस और एड्रेस की लेंथ, इस कंप्लीट बफर की लेंथ. Another thing is accept system call. When you welcome a new connection, you just accept it with the accept system call. इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आप ये देखें कि पहला जो पैरामीटर है दैट इज द सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर, और ये उस लिसनिंग सॉकेट का फाइल डिस्क्रिप्टर है जिसके ऊपर आप नए कनेक्शंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं. Then you pass on a pointer to the client address. You are not passing any address in fact. You are only passing the pointer to the buffer in which the client's address will be stored. इसलिए आप देखें कि आगे जो एड्रेस लेंथ है that is also a pointer. It because जब आप इसको पास करते हैं तो आप इस बफर की लेंथ इसमें पास करते हैं, but when it returns it gives the address length of the address that has been stored in the client address field. Accept की रिटर्न वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस तरह सॉकेट की रिटर्न वैल्यू आपको सॉकेट का हैंडलर प्रोवाइड करती है, इसी तरह एक्सेप्ट की रिटर्न वैल्यू आपको एक नए सॉकेट का हैंडलर प्रोवाइड करती है. ये नया सॉकेट कौन सा है? ये वो सॉकेट है जो सर्वर की साइड पे क्रिएट होता है. अब सिर्फ ये सॉकेट क्लाइंट से बात करता है. जो ओरिजिनल सॉकेट था इट रिमेन्स इन द लिसनिंग मोड, और नए आने वाले कनेक्शन उस लिसनिंग सॉकेट के ऊपर रिसीव होते रहेंगे. नाउ स्टूडेंट, हमने सॉकेट से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिए. हमने सॉकेट क्रिएट किया, उसको एक एड्रेस के ऊपर बाइंड किया. सर्वर साइड के ऊपर हमने उसको पैसिव मोड में लिसन की कमांड के थ्रू नए कनेक्शंस के लिए लिसनिंग मोड में लेकर गए, और एक्सेप्ट की कॉल के थ्रू नए कनेक्शंस को एक्सेप्ट किया. लाइकवाइज क्लाइंट की साइड के ऊपर हमने सॉकेट को क्रिएट किया और कनेक्ट के सिस्टम कॉल के थ्रू उसको किसी स्पेसिफाइड एड्रेस, वेल नोन एड्रेस के ऊपर सर्वर से कनेक्ट किया. वंस द कनेक्शन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, नाउ वी विल मूव ऑन टू सेंड एंड रिसीव द डेटा. इस डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए हमारे पास ऑब्वियसली बड़ी सिंपल सी सिस्टम कॉल्स एंड वी कॉल एज सेंड एंड रिसीव. आइए हम उसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं. जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, हमारे पास डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए सेंड और रिसीव की कॉल के अलावा राइट और रीड की कॉल्स भी हैं. इसमें सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि राइट की कॉल के अंदर वो फ्लैग्स नहीं है जिसके थ्रू आप कुछ ऑप्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं. अदरवाइज इट्स द सेम. राइट करते वक्त भी आप सॉकेट का फाइल डिस्क्रिप्टर देंगे, जो डेटा आपने सेंड करना है उस बफर का पॉइंटर देंगे और साइज बता देंगे. इसी तरह से when you want to read data that has been received from the network, you will also use either read or receive call. ये मैं TCP की बात कर रहा हूँ. इसमें भी आप एक सॉकेट का फाइल डिस्क्रिप्टर देंगे, कैरेक्टर पॉइंटर की फॉर्म में बफर का पॉइंटर देंगे जिसमें डेटा आपने रीड करने के बाद स्टोर करना है, और उस बफर का आप साइज मेंशन करेंगे. रिसीव की कॉल भी सिमिलर है, जैसा कि मैंने बताया. इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ है दैट इज द फ्लैग्स. वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन. यूडीपी के केस में थोड़ा सा सेंड रिसीव डिफरेंट है, क्योंकि यूडीपी के अंदर हम कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करते, तो हम हर सेंड और रिसीव की कॉल के अंदर स्पेसिफिकली बताते हैं कि ये स्पेसिफिक डेटा मैंने किस एड्रेस के ऊपर भेजना है. आपने देखा था कि टीसीपी के केस में सेंड रिसीव में हमने कोई एड्रेस नहीं दिया था, बिकॉज कनेक्शन इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड और हम उसी कनेक्शन के ऊपर डेटा भेजते जा रहे थे. अब अगर आप स्लाइड पे देखें तो सेंड टू यूज़ करते हैं हम यूडीपी के केस में. इसमें सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट नज़र आ रही होगी, दैट इज़ द सॉकेट एड्रेस स्ट्रक्चर. ये हम बताते हैं कि हमने डेटा किस डेस्टिनेशन को सेंड करना है और उसका कंप्लीट सॉकेट एड्रेस स्ट्रक्चर है, मींस आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर एटसेट्रा. इसी तरह से यूडीपी में जब हम डेटा रिसीव करते हैं तो रिसीव की कॉल की बजाय रिसीव फ्रॉम पे रिसीव करते हैं. इसमें भी आप देख रहे हैं एग्जैक्टली एक ही डिफरेंस है, दैट वी आर ऑल्सो मेंशनिंग द एड्रेस फ्रॉम वेयर दिस डेटा हैज़ बीन रिसीव्ड. इसमें आप देखें कि जो एड्रेस लेंथ है दैट इज़ अ पॉइंटर. इट मीन्स दैट द सॉकेट एड्रेस स्ट्रक्चर इज़ नॉट फिल्ड, इट इज़ जस्ट पॉइंटिंग टू एन एम्प्टी बफर जिसमें हम रिसीव होने वाले पैकेट का एड्रेस स्टोर करेंगे और एड्रेस लेंथ के अंदर मेंशन कर देंगे कि इस एड्रेस की लेंथ कितनी थी.
डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी ये देखा कि इन सिस्टम कॉल्स के थ्रू हमने इस कनेक्शन के ऊपर डेटा सेंड किया और रिसीव किया. अब टीसीपी की केस में हमने सेंड रिसीव या राइट और रीड की कॉल यूज़ की, और यूडीपी के केस में हमने सेंड टू एंड रिसीव फ्रॉम यूज़ की. अब अगर ये टीसीपी का कनेक्शन है तो सारा डेटा सेंड करने के बाद और रिसीव करने के बाद वी हैव टू एक्सप्लिसिटली टियर डाउन द कनेक्शन. इसके लिए हम कौन सी कॉल्स यूज़ करते हैं, हम इसको देखते हैं. द फर्स्ट कॉल इज़ क्लोज. क्लोज के केस में आप उस सॉकेट का फाइल डिस्क्रिप्टर पास करेंगे और क्लोज की जो सिस्टम कॉल है उस सॉकेट को क्लोज कर देगी. अब आप इस सॉकेट के ऊपर कोई डेटा ना भेज सकते हैं, ना ही रिसीव कर सकते हैं. एक और जो हमारे पास सिस्टम कॉल मौजूद है सॉकेट को क्लोज करने के लिए, दैट इज़ शट डाउन. इसमें आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि आप सॉकेट को किस तरह से शट डाउन करना चाहते हैं. ऑब्वियसली आपने पहले सॉकेट का फाइल डिस्क्रिप्टर दिया और उसके बाद बताया हाउ यू वांट टू क्लोज दिस सॉकेट. द ऑप्शंस आर शट रीड, शट राइट और शट रीड एंड राइट. इसका मतलब है कि अगर आप ऑप्शन शट रीड के देते हैं, अब आप इस सॉकेट के ऊपर रीड नहीं कर सकते, बट स्टिल यू कैन सेंड डेटा ऑन इट. इसी तरह से अगर आप ऑप्शन देते हैं शट राइट की, तो आप इस सॉकेट के ऊपर अब कुछ भी राइट नहीं कर सकते. हाउएवर यू मे स्टिल कंटिन्यू टू रिसीव डेटा ऑन दिस सॉकेट. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी जो सॉकेट की एपीआई थी उसकी डिटेल्स हमने कवर कर ली. हमने कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया और उसकी जो बेसिक सिस्टम कॉल्स थी वो देखी, फिर डेटा सेंड किया और फाइनली टीसीपी के केस में हमने कनेक्शन को क्लोज भी किया. उसके लिए हमारे पास क्लोज और शट डाउन की दो सिस्टम कॉल्स. Now moving on to some of the advanced socket concepts. अगर आप बीच गाइड ऑफ नेटवर्क प्रोग्रामिंग की एग्जाम्पल करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कुछ सिस्टम कॉल्स यूज हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल fork. What this system call uses that it invokes a new process. One is the parent process and another child process is also invoked. और आप दोनों प्रोसेसेस के अंदर concurrently अपना अपना कोड जो स्पेसिफिक होता है दोनों चाइल्ड और पेरेंट प्रोसेसेस के लिए वो रन करते हैं. एक और एडवांस सिस्टम कॉल है सिलेक्ट की या पोल की. दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन दैट प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल. इसके अंदर आप पोल करते रहते हैं और ये इस चीज़ का वेट करते हैं कि किसी सॉकेट के ऊपर कब डेटा रिसीव हुआ. दिस सिस्टम कॉल इज यूज जस्ट टू वेट फॉर द इनकमिंग डेटा दैट इज रिसीव्ड ऑन एनी सॉकेट. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सिलेक्ट और पोल की जो फंक्शन कॉल है दैट इज यूज टू डिटेक्ट व्हेन एवर अ डेटा अराइव ऑन एनी सॉकेट. हमने अपने इस सॉकेट की जो जितनी डिटेल्स थी उसको कवर कर लिया. अब हम इसको कंक्लूड करते हैं अपने आज के लेक्चर को. मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इंटरनेट के ऊपर जाएं और बीच गाइड ऑफ नेटवर्क प्रोग्रामिंग को डाउनलोड कीजिए. वो आपको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको बीच गाइड ऑफ नेटवर्क प्रोग्रामिंग मिल जाएगी. उसमें एक सिंपल एग्जाम्पल कोड दिया हुआ है. आप उस कोड को डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें और अगर हो सके तो ज़रूर उस कोड को अपनी मशीन के ऊपर चला कर देखें. इट विल रियली हेल्प यू इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज वेरी सिंपल सिस्टम कॉल्स जो कि हमने आज पढ़ी हैं. कंक्लूजन से पहले मैं आपको एक दो स्लाइड्स इस तरह से दिखाता हूँ ताकि आप टीसीपी के कनेक्शन सेटअप को हमारी जो सिस्टम कॉल्स हैं उनको मैप कर सकें. तो आइए वो एक दो स्लाइड्स देखते हैं और फिर हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं. टीसीपी के कनेक्शन में सबसे पहले सर्वर साइड के ऊपर सॉकेट की सिस्टम कॉल है, बाइंड की सिस्टम कॉल है इन ऑर्डर टू बाइंड द सॉकेट टू सम वेल नोन एड्रेस, देन लिसन. नाउ द सर्वर इज इन लिसनिंग मोड. उसके बाद क्लाइंट साइड के ऊपर सॉकेट की सिस्टम कॉल है और कनेक्ट की सिस्टम कॉल है. व्हेन द कनेक्ट सिस्टम कॉल इज गिवन द टीसीपी सिंक सेगमेंट इज सेंट टू द सर्वर. और सर्वर कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के बाद सिंक और एग का सेगमेंट वापस भेजता है. व्हेन दिस सिंक एग सेगमेंट इज रिसीव्ड द कनेक्शन इज कंप्लीट एट द क्लाइंट साइड. और जब ये एग वापस जाती है सर्वर साइड के ऊपर तो कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है. अब ये दोनों साइड सर्वर जो है वो एक्सेप्ट करता है कनेक्शन को और उसके बाद दोनों साइड्स डेटा को रिसीव करना शुरू कर देती हैं. इसी तरह से अगर आप यूडीपी के कनेक्शन में देखें तो सर्वर की साइड के ऊपर सॉकेट की क्रिएशन है और बाइंड है, लेकिन लिसनिंग नहीं है बिकॉज नो कनेक्शन विल बी एस्टैब्लिश्ड. क्लाइंट की साइड के ऊपर सॉकेट की क्रिएशन है और क्लाइंट सेंड टू की सिस्टम कॉल के थ्रू डेटा को सेंड करता है और सर्वर रिसीव फ्रॉम से रिसीव कर लेता है. इसी तरह से सर्वर सेंड टू के थ्रू सेंड करता है और क्लाइंट रिसीव फ्रॉम के थ्रू रिसीव कर लेता है. वेन एवर दे वॉन्ट टू देयर कम्युनिकेशन तो वो क्लोज के थ्रू सॉकेट को क्लोज कर देते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये वो इम्पॉर्टेंट सिस्टम कॉल्स थी जो कि आज हमने स्टडी की.
ہم نے ساکٹ کی API تقریباً مکمل کر لی، اس کی ڈیٹیلز بھی دیکھ لیں. آپ ضرور ان ساکٹ کالز کو خود سے اسٹڈی کیجئے، اس کی ڈیٹیل کو دیکھیں اور ایک چھوٹی سی کلائنٹ سرور اپلیکیشن بنا کر اپنے کمپیوٹرز کے اوپر رن کریں. اٹ ول گیو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ٹو یو فار دیز ساکٹ API. ہم آج کا لیکچر یہاں پر ختم کرتے ہیں. ہم نے اپنا ٹیکسٹ بک میں پہلا چیپٹر کمپلیٹ کر لی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سیکنڈ چیپٹر سے سٹارٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اب آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.